Yes, students, today we are going to start the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. In this poem, the poet aims to appeal to the readers to take some time of their busy life for a little introspection. It means कि हमें सोचना और विचारना चाहिए. This title, Keeping Quiet, basically is a symbolic of stopping all the activities, keeping quiet in the mind, not doing anything, but to question and understand the purpose of the world that the human have created around themselves. कि आज इंसान ने किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर ली है, इस बात के लिए हमें सोचना है और विचारना है. Now I am going to start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. The poet says कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब स्टिल रहेंगे, यानी कि हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे. Count to 12 means for some time we are not going to do any activity. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. पहली बार इस धरती पर चलो हम कोई भाषा नहीं बोलते, हम 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपनी आर्म्स ना चलाने का मतलब बच्चे कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्टिविटी. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Pablo says that when we would stop all our activities, when we would not speak any language, तो ये बड़ा exotic, wonderful moment होगा. Without rush, without engine, where there is no rush of engine, and we would all be together, यानी कि हबब नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा और हम सब एक होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और वो बड़ा एक अजीब सा जो है सिचुएशन होगी, बट इट वुड मेक अस और ब्रिंग अस क्लोजर टू ईच अदर, जहां पर हम एक दूसरे के पास महसूस करेंगे और साथ महसूस करेंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at the hurt hands. बच्चे, जब हम सारी एक्टिविटीज को रोक लेंगे तो what kind of the situation will be? Fishermen in the cold sea would not harm whales. It means the natural world, the aquatic world is destroyed or disturbed by the people. Similarly, fishermen would stop harming the whales. Aquatic life destroy होना बंद हो जाएगी और वो लोग जो कि सर्वाइवल के लिए इस तरीके के काम करते हैं जिसमें उनके हेल्थ हैजर्ड साथ में रहते हैं, वो फर्स्ट टाइम अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे. यानी कि वो लोग जो कि सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि अपनी जीविका कमाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, फॉर वंस वो देखेंगे कि उन्होंने क्या डैमेज किया है टू देमसेल्व्स. Yes, now those who prepare green wars, it is a situation, similar to the present scenario, as we all have when stopped the activities in considering the coronavirus. You can see the changes in the nature. The similar situation is presented here. Those who prepare green wars, wars with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brother in the shade doing nothing. Those who prepare green wars, it means those people who are indulged in preparing for the nuclear wars or making the weapons. As you can see, many of the people are talking about the biological weapon. तो इस तरीके की जो green wars, you can say war against the nature, war with gas, you can say, or wars with fire, nuclear wars. तो इस तरीके की जो वॉर्स होती हैं उसमें किस तरीके का जो रिजल्ट होता है, यस देयर इज विक्ट्री, वहां पर जीत होती है, बट देयर इज नो सर्वाइवर दैट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, लेकिन पैब्लो चाहता है ऐसे लोग भी इन सब एक्टिविटीज को छोड़कर साफ सुथरे कपड़े पहने, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, सारे लोगों को यानी कि पूरी ह्यूमन रेस को अपने भाई बंधु समझे, इन द शेड, और उनके साथ जो हैं वॉक करें अंडर द शेड डूइंग नथिंग, और पहली बार कुछ समय के लिए कुछ भी ना करें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें. नाउ द पोएट सेज,
what I want should not be confused with total inactivities. बच्चे, अभी तक हमें पोइट ने ये कहा कि हमें स्टिल होना है, हमें कुछ नहीं करना है. तो पोइट कहता है कि कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको स्टिल होने के लिए कह रहा हूं, मैं टोटल इनएक्टिव होने के लिए नहीं बोल रहा हूं. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट मीन्स कि जो जिंदगी है वो चलने का नाम है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कि जो हमारी जिंदगी है वो चलने का नाम है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप कोई एक्टिविटी नहीं करिए. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं चाहता कि आप सब जो हैं टोटली इनएक्टिव हों, क्योंकि इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. तो मैं ये नहीं चाह रहा कि ह्यूमन बीइंग्स जस्ट गो फॉर डेथ. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. तो पोइट ने जो हमें स्टिल होने के लिए कहा और हमें एक्टिव होने के लिए कहा थ्रू आवर माइंड, जहां हम एनालाइज करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और उसके अंदर हमें ये रियलाइजेशन आएगा कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते, यानी सिर्फ अपने बारे में ना सोचा होता, अपनी जिंदगी के बारे में ना सोचा होता, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हमने पहली बार ना कुछ करके सिर्फ सोचा होता, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस. तो एक इस उदासी के अंदर, इस साइलेंस के अंदर जो है एक रियलाइजेशन आता ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, कि हम लोगों ने अपने आप को शायद समझा ही नहीं है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और ये समझ में आएगा कि आज इंसान ने अपनी ही जिंदगी को मौत की थ्रेटनिंग दे दी है, यानी कि इंडेंजर कर दिया है अपनी लाइफ को. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead later proves to be alive. शायद ये धरती हमें सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म हुआ लगता है, कि सब कुछ फिनिश हो गया, डेड हो गया, लेकिन सडनली जो धरती है वो लाइव शो करती है. जैसे एक सीड है तो वो जर्मिनेशन जब तक नहीं होता ऐसा लगता है कि वो डेड है, लेकिन जैसे ही सीजन आता है तो इट स्प्राउट्स इन अ प्लांट. तो ये जमीन हमें सिखाएगी कि ये मत सोचो कि हाँ अब लगता है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. अभी भी चांसेस हैं, अगर हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करेंगे तो हम आज भी इस ह्यूमन रेस को बचा सकते हैं. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप स्टिल, सॉरी यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. कि अब मैंने जो ये एक तरीके की टास्क आपको दी है कि मैंने 12 गिन दिए हैं, आपको समय दे दिया है. यू कीप क्वाइट, अब आप चुप रहिए, शांत रहिए, यानी कि एक्टिव हो जाइए, माइंड से सेल्फ एनालाइजेशन करिए और मैं चलता हूँ, यानी कि आप अपनी टास्क को कंप्लीट करिए. नाउ देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड keeping still help us to achieve? What will it will help us to bache to introspect. It's a short time, but when we will sit and when we will introspect and review the course of action, सोचेंगे, विचारेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि what problems we have created for the human world. Do you think the poet advocates total inactivity and death? No, poet doesn't advocate total inactivity and death. He asked us to keep still. It means to be active in mind, to introspect, to analyze what harms we have done. That is why Neruda said that he didn't want any truck with death. It means total inactivity doesn't mean to die. Okay, what is sadness? The poet refers in the poem. मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट. कब इंसान को उदासी होगी? जब उसे रियलाइजेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसने किस तरीके के आज तक एक्शन किए हैं, रैश एक्शंस दैट हैज प्रूव्ड टू बी हार्मफुल एंड डिजास्ट्रस for the human race. So a man is always basically threatening himself with the death. That is why he will be sad.
What symbol from nature does the poet invoke to us say that there can be life under apparent stillness? कौन सा symbol use किया है जो ये show करता है कि apparent stillness है लेकिन still there is life? Yes beta, you can see in the second last paragraph, the earth. The poet wants to prove that there can be life under the still apparent stillness. So the poet has use the earth as a living symbol to prove his point. The earth never attains total inactivity. Nature remains at work even under apparent stillness. यानी कि जो nature है वो अपना काम करती रहती है. So earth has been used as a symbol. I hope student you must have understood, and if any of the suggestion you have for me, you can leave it in the message box. Thank you, and that's all for the today.